आज स्वतंत्रता सेनानी होना मतलब एक जिम्मेदार नागरिक होना, आजीवन नई चीज़ें सीखते रहना, ये भी एक सेवा है। और साथ में हम एक चारित्रवान युवक बने, युवती बने, ये भी एक देश की सेवा है। तो मैं चाहूँगी कि आज यहाँ उपस्थित हर छात्र छात्राएं ऐसे ही चारित्रवान, शीलवान स्वतंत्र सेनानी बने, देश की सेवा में अपना योगदान दे। आइए साथ मिलकर इन शहीदों को श्रद्धांजलि दे। आप सभी का आज के कार्यक्रम में फिर से अभिवादन है। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। तिरंगा है भारत की शान, तिरंगा है भारत की शान, इस पर है हम सबको अभिमान। जब गूंजती है जन गण मन की मधुर तान, एक सूत्र में बंध जाता है सारा हिंदुस्तान। Let's understand the meaning and importance of a national flag and national anthem, which shows unity in diversity. I would like to invite Ms. Kavya Vyas to kindly lead us as we honor our national flag and national anthem. Greetings of the day to everyone. Today, we do not just speak of history, we speak of the heartbeat of a nation. We speak of the soul of India, woven into the threads of a flag and breathed into the melody of an anthem. These are not merely symbols, they are the sacred echoes of a million sacrifices. The sacred threads of our flag. Our tricolor did not appear overnight. It was born from the blood, sweat, and tears of those who dared to dream of a free sky. 1906 to 1907. Imagine the courage of Bikaji Kama in 1907, hosting our early flag on foreign soil in Paris and Berlin, telling the world that India would no longer be silenced. 1921. Think of the young man from Andhra who walked up to Gandhiji in Bezwada with a vision of the charkha, a symbol that we would weave our own destiny with our own hands. July 2022, 1947. Finally, just days before the dawn of our freedom, the Dharma Chakra was placed at the center of our tricolor. When that flag rose at the council house on August 15, it wasn't just cloth moving in the wind. It was the collective gasp of a national finally breathing the air of liberty. Now let's understand our national anthem. As that flag rose, a melody rose within it. When Rabindranath Tagore penned Jana Gana Mana in 1911, he wasn't just writing a song. He was mapping the spiritual geography of our motherland, from the peaks of the Himalayas to the waves of the Indian Ocean. When Netaji Subhash Chandra Bose chose this anthem for the Free India Center in 1942, he knew that these words had the power to unite 1,000 languages into one single roar of Jai Hind. On January 24, 1950, it officially became our voice, a 52-second promise that we are one, we are sovereign, and we are home. Our identity, our pride. When we stand at attention today, let your heart swell. The saffron is the fire of our martyrs' sacrifice. The white is the light of our truth and peace. The green is the fertility of our soil and our hope for the future. And as the anthem plays, remember, every note is a tribute to the ancestors who gave up their today so that we could have our tomorrow. Let us not just carry the flag in our hands. Let us carry it in our character. Let us do not just sing the anthem with our lips. Let us live it with our lives. Now, I kindly request everyone to please stand at your respect. जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। अब मैं विनम्रता पूर्वक हमारे वीर शहीदों के सम्मानित परिवारजन तथा हमारे सम्मानीय और गणमान्य सभी व्यक्तियों से, विशेष अतिथिगण से निवेदन करती हूँ कि वे मंच की तरफ आएं और अमर जवान ज्योत प्रज्वलित कर देश के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। यह हमारे लिए गर्व और सम्मान का क्षण है। शुभं कुरुत्वं कल्याणं, आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं, आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते। Dance with dialogue performance by our students, portraying the journey of India before 1947 to the moment of independence. This performance reflects the struggles, sacrifices, and courage of our freedom fighters, taking us through the path from slavery to freedom. Let us witness this inspiring journey in a dance form. We welcome you all with a big round of applause. भारतवर्ष एक महान सभ्यता है, जहां मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। मणिकर्णिका। मैं लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, नवलकर वंश की वधू, प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक।
तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव। गगन कहे विजयी भव। ओ विजयी भव। आजादी का संग्राम बलिदान मांगता है। हमारा सौभाग्य होगा अगर इस पवित्र मिट्टी को अपने प्राणों की भेंट दे पाएंगे। रही बात मिसाल बनाने की, मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी। सब कुछ मिट गया, अब किसके लिए लड़ेंगे हम? बोलो मनु। हम लड़ेंगे ताकि फिर किसी बच्चे को वो प्रश्न न पूछने पड़े। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने अस्तित्व पर शोक नहीं, अपनी आजादी का उत्सव मनाए। हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को पुनः जीवित करेंगे। अपने लोग, अपना राज, अपना गौरव, अटक से कटक तक संपूर्ण भारत। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए।
मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई की। हम अपनी झांसी नहीं देंगे। झांसी हम हिंदुस्तानियों की ही है। मातृभूमि की आजादी के लिए आजादी। भारत ये रहना चाहिए। That was truly wonderful and inspiring. A big round of applause. Now, I would like to request ex-Air Commodore Mr. S.S. Tyagi sir to please come and share your wise words with our students and inspire the future generation. We all welcome sir with a big round of applause. मेरा आप सब बच्चों को बहुत बहुत प्यार। और जब बड़े प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बहुत खुश होते हैं। खुश क्यों होते हैं कि इस प्यार से ही हमारे जीवन में जो भी हम बनना चाहते हैं, जो भी हमें चाहिए, वो जब तक हमारे साथ रहता है, जब तक प्यार हमारे साथ रहता है। बच्चों, मैंने ख़ास तौर से रिक्वेस्ट करी कि मैं आप लोगों से 5 मिनट बात करना चाहूँगा। छोटी छोटी 2-3 चीज़ें कहूँगा। सबसे पहले तो आपने ये आज हमें बताया गया शाम में, भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु कितने छोटे थे जब उन्होंने अपने जीवन को त्याग कर दिया। 22 साल एक, 23 साल के 2। सोचो आप, जब उन्होंने बॉम्ब डाला था पार्लियामेंट पे, तो उन्हें मौका था, कहीं भी जा सकते थे कोई। उन्होंने बॉम्ब ऐसा नहीं था जिसका विस्फोट होके
नुकसान किसी को पहुंचे। वो सिर्फ धुएं वाला बॉम्ब था, पर वो चाहते थे कि ये बात हिंदुस्तान भर में पहुंच जाए, क्योंकि उन दिनों प्रेस और मीडिया नहीं होता था। तो ये जब बातचीत होगी तो सबको पता लगेगा। केस जब हुआ उन पे हुआ, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है बच्चों। ये एक सच्चाई है जो हम लोग कभी कोशिश नहीं करते जानने की। जो गवर्नर जनरल थे अंग्रेज, उन्होंने अपनी एक छोटी सी मेमोयर लिखी है, याददाश्त जिसे कहते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं इंतज़ार करता रहा, अगर महात्मा गांधी मेरे से एक बार कहते कि इन्हें छोड़ दीजिए तो मैं इन्हें माफ़ कर देता, पर उन्होंने एक बार भी मुझे माफ़ी के लिए, एक बार भी। और इतने बड़े बड़े हमारे एडवोकेट हुआ करते थे उस ज़माने में, किसी ने उनका केस नहीं लड़ा। ये बड़ी दुख की बात है। पर वो तीनों इतने बड़े शहीद थे कि जब उनकी बात हम लोग सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप तो सब छोटे हो, आपके तो अभी बाल ही नहीं आए, तो रोंगटे कहाँ से खड़े होंगे, है ना। जब बड़े हो गए तो सब बाल खड़े हो जाएंगे। ओके, अच्छा, दूसरी बात मैं एक कहना चाहता हूँ। हमारे 3 मार्टिर, रमेश भाई, महिपत और अशोक जी, जब ये शहीद हुए तो ये ऊपर गए और भगवान जी वहाँ पे इनका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे तुम लोग क्या करते हो, ये क्यों अपना बलिदान करते हो जीवन का। उसने कहा, हम तो सोल्जर हैं, हमारा तो काम ही है कि अपना जीवन बलिदान करके हम अपने देशवासियों की रक्षा करें। और जो ये भारत हमारा देश है, जो एक नक्शा नहीं है, वो लाइन नहीं खींची हुई है कागज पे, वो असल में जो उसमें हर जो नागरिक रहता है वो सब मिलके इसे भारत बनाते हैं। तो उनकी देखभाल करके उनकी रक्षा करना, हम तो अपनी जान भी जाए थे। उसने कहा, तुम यही तो हो, तुम जान देते हो, कभी सुधरोगे नहीं। फौजियों की यही दिक्कत है कि बस एक मन में ठान ली, उसे लगे रहते हैं। तुम्हें पता है जिसके लिए जान दी, क्या वो इस लायक हैं क्या उसके लिए तुम अपनी जान दो? क्या वो इतने सच्चे हैं? क्या वो इतने देशभक्त हैं? क्या आप अपनी जान दे दो उनके लिए? तो उन्होंने कहा, भगवान जी हम तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। उससे एक ही सीख मिलती है बच्चों, और बड़े भी हैं, बड़ों को भी मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ जो भी शहादत प्राप्त करते हैं उनका एक ही मकसद होता है, और उनकी जो शहादत है उसे सम्मान मिलेगा जब उन्होंने उसे उन लोगों के लिए दिया हो जो कि इस लायक हों। प्लीज़ आप सब इसके लायक बने, यही मेरी आपसे आग्रह है, और हर शहीद, हर जवान यही आग्रह करता है। नंबर 3, ये जो तीनों शहीद हुए थे, वो मतलब उनका जीवन चला गया, हमने उनसे कोई चीज़ सीखी। आपने कहा कि भाई इनका ये जीवन गया है, तो हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए? वो क्यों उन्होंने अपनी जान दी, किस लिए जान दी? कोई बताएगा बच्चे? आप बताओ बेटे, क्यों जान दी थी उन्होंने? समझो, मैं बताता हूँ। देश के लिए, है ना, देश की रक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए। अब आज़ाद तो हम लोग हो गए, अब हमें उनसे यही सीख लेनी है कि हम हर एक जो हम हैं, हमें अपने देश को जो उन्होंने शुरू किया था उसे आज़ादी के बाद ऐसी जगह ले जाएं कि फिर से जो हमारा भारत एक ज़माने में दुनिया में सबसे बड़ा देश था, हम इसे क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। हाँ बोलो, क्या कहते थे बेटा? सोने की चिड़िया। तो इसको फिर से एक बार सोने की चिड़िया बना देंगे। और नदियों में क्या बहता था? पानी नहीं बहता था, उन दिनों तो दूध बहता था। दूध बहता था, मतलब ये था कि वो इतना अच्छा होता था कि हम सबको उससे तंदुरुस्ती मिलती थी, बल मिलता था, दिमाग में हमें जोश आता था, जो भी उसमें बहता था। तो ये कहावत है। तो हम लोग फिर से अपने देश की नदियों को, तो जो गंदगी हम लोग, इसका मतलब क्या है कि जो गंदगी हम करते हैं उसे ना करें, उस गंदगी को हम लोग बंद कर दें, साफ सफाई रखें, और जो फिर से हमारी नदियां ऐसी हो जाएं कि जिसमें से ऐसे पानी भर के पिया करें। जब मैं आपकी उम्र का था तो असल में हम लोग ऐसे ही पानी पीते थे, जमुना में जाके, गंगा में जाके उनका ही पानी पीते थे, कोई उसमें गंदगी नहीं होती थी। ओके, एक छोटी सी कहानी मैं इसके साथ में बता दूंगा। ये हमारा स्वच्छ भारत का बड़ा
प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया तो उस समय बहुत जोश था, सब करते थे। तो मैं घर से निकला तो बैंक था सामने, बैंक जा रहा था तो दो बड़े अच्छी शर्ट पैंट पहनी हुई बड़े स्मार्ट दो लड़के होंगे, करीब 28-30 साल के बीच में। और उन्होंने, जो आपको तो पता ही है गुजरात में हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है कि अब पहले हमारे जो बुज़ुर्ग होती थी, हमारी माताएं बहनें, उस चक्की चलाया करती थी ऐसे, वो चक्की चला के उसमें आटा बनाती थी और वो आटे का खाना बनाती थी। आजकल गुजरात में आपने देखा होगा काफ़ी लोग यही करते हैं। क्या करते हैं, वो कागज़ में मसाला होता है उसको मिला के ऐसे करते हैं और फिर खाते हैं और फिर उस कागज़ को ऐसे करके फेंक देते हैं। तो उन्होंने खाया और ऐसे फेंका, वो सामने गिरा, मेरे से 1 गज दूर होगा। तो मैं रुक गया, मैं उनके पास गया, मैंने कहा आपको अगर बुरा ना लगे तो मैं इसे उठा लूं, क्योंकि आपके मन में पता नहीं क्या भाव था, कितना बड़ा काम आप कर रहे थे ये कागज़ फेंकने का, और मैं उसे उठा लूं तो आपको बहुत बुरा लगेगा, मैं नहीं चाहता आपको बुरा लगे। तो मैंने कहा अगर आपकी आज्ञा हो, इजाज़त हो, परमिशन हो तो मैं इसे उठा लेता हूँ। उन्हें इतनी शर्म आई, दोनों झुके, कौन पहले उठाए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि उन्होंने उसके बाद में अपने जीवन में ये करके कभी फेंका नहीं होगा। तो जब भी आप देखें कि कोई गलत काम कर रहा है तो उसे धीरे से, बड़े अच्छी तरीके से, ऐसे नहीं कि उसे नीचा दिखाने की बात है, बड़े प्यार से इस बात को उन्हें बता दें कि प्लीज़ ये ना करें, और अगर आपको ज़रूरत हो मैं आपकी साफ़ सफाई कर देता हूँ। ओके बच्चों, और बस मैं तो बोलता ही रहूँगा, मेरी बड़ी गंदी आदत है, जब मुझे बच्चे दिख जाते हैं ना, काश मैं टीचर होता तो आप लोग को छुट्टी नहीं मिलती, बस बात ही करते रहता। पर मैं एक बात सबको बताता हूँ, सब बच्चों को, और वो ख़ास तौर से पेरेंट्स के लिए है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कान बंद कर लें जब मैं ये बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ। जब हम छोटे होते थे ना तो हम भी घर में ये था, अरे बड़ा पढ़ने वाला है, देखो कितने बजे, 4 बजते नहीं है, किताब लेके ट्यूशन के लिए चला जाता था। हम लोग किताब लेके जाते थे, पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें रखते थे और खेलते थे 3 घंटे और फिर वापस आते थे, घर में सब बड़े खुश। तो मैं आपसे कहूँगा खेलना मत छोड़ना, जब भी मौका मिले खेलो, खेलोगे तो जीवन में हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, दिमाग तेज रहेगा, खुश रहोगे। और फिर उसी में आपको जो अपने माता पिता हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनसे जो है प्यार वाली डांट पड़ेगी, वो प्यार वाली डांट होती है, उसकी चिंता मत करना ज़्यादा, माफ़ करना सब प्लीज़ मुझे। और एक आखिरी चीज़ मैं बता दूं, ये बहुत ज़रूरी है, आप देख रहे होंगे कि मेरे पे मेडल मैंने छाती पे लगाए हुए हैं, बड़ा मैं गर्व से इन्हें दिखाता घूम रहा हूँ। ये ऐसे जो हम फौजी होते हैं ये मेडल लगाते हैं, ये हमें मिलते हैं जब हम लोग ऑपरेशन पे जाते हैं। मैं 65 और 71 दोनों वॉर में था, और जैसे उन्होंने बताया मेरी दुनिया में मिग 21 पे सबसे ज़्यादा फ्लाइंग है और मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। वो नहीं, मैं प्लीज़, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्यों हुआ, इसलिए नहीं कि मैं करना चाहता था, इसलिए कि मैंने पूरे जीवन में बड़ी सिंसियरली, बहुत सिंसियरली जो मेरी ड्यूटी थी, काम था, उसको मैंने निभाया। और उसको करते 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 जब रिकॉर्ड हम तो रखते रहे, एक दिन ऐसा हुआ कि वो इतना बड़ा हो गया। ओके, तो जो भी काम आप करो उसको बिल्कुल मन लगा के सिंसियरली करना। और जब मैं ये बता रहा था मेडल की बात, तो क्या होता है कि ये मेडल हमें मिलते क्यों हैं, जो हम होते हैं लड़ाई पे रहते हैं, मोर्चे पे रहते हैं, इसका एक ही रीज़न है कि जो हमें, जब हम अपनी ड्यूटी पे होते हैं तो हमें मन में ये नहीं रहता कि घर पे मेरी माताजी को हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा, मेरे बच्चों का एडमिशन कौन कराएगा, उनको यहाँ पे क्या करेंगे, उनका ये कौन करेगा, क्योंकि घर पे हमारी धर्मपत्नी, और अगर उससे शादी से पहले की बात है तो माताएं, वो इस चीज़ को ध्यान रखती है। और वो उनका जो ये डेडिकेशन है, मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जितने भी फौजी हैं, जो भी हम जीवन में अचीव करते हैं, इसके पीछे हमारी माताएं और हमारी धर्मपत्नियां हैं। मैं चाहूँगा उनके लिए एक बार हम लोग ताली बजा दें कि ये एक सोल्जर जो बड़ा अपने आप को 30 मार खान समझता है, वो एक्चुअली 30 मार खान इसलिए बनता है कि उनकी माँ और उनकी जो धर्मपत्नियां हैं वो हर चीज़ का ख्याल करती हैं और आपको बिल्कुल फ्री छोड़ देती हैं अपनी देश की रक्षा करने के लिए, जो चाहिए वो करने के लिए। बच्चों,
मैं जब छोटा था तो मैं कहा करता था बड़ा होऊंगा तो देश को फिर से सोने की चिड़िया बना दूंगा, जैसे मैंने कहा नदियों में दूध बहा दूंगा। मैं फेल हो गया, नहीं कर पाया। पर अब मेरे को आप सब में ये दिखता है, जो मेरी नहीं कर पाया वो आप सब करेंगे। आज वादा करते हैं कि आप सब ये करेंगे। जोर से बोलो हाँ। ये बात हुई। अब तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। मैं 84 साल का हूं, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 साल और जीऊंगा। तो जब तक आप बड़े होकर ये सब देख लूंगा मैंने, तब फिर मैं आपको कहूँगा अच्छा भाई अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। ओके, तो आप ध्यान रखना और ये बहुत मन लगा के जो भी पढ़ाई है, खेलना है, जो भी बाद में बड़े होकर काम करोगे उसे करना। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार हम लोग अच्छे से भारत माता जी को याद कर लें। हैं? भारत माता की मैंने कहा नहीं क्या कहना, मुझे पता था जब मैं कहूंगा तो आप सब जाग जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। अब एक ही रिक्वेस्ट मेरी आपसे है। हम लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र, नमस्कार, सलाम अलैकुम, ये वो, पर अगर हम लोग कहें जय हिंद तो क्या अच्छा लगता है? जोर से बोलो। आज से ये प्रण कर लो, जब भी आप मिलो एक दूसरे को तो हमेशा जय हिंद कहा करो। ओके, तो जय हिंद याद रखना। और हमेशा एक दूसरे को जब ग्रीट करो तो इसमें ना कोई धर्म है, ना जात है, ना कुछ है। जय हिंद है, देश की लिए हम उसकी तरक्की के लिए बात करते हैं। तो जय हिंद एक दूसरे से हमेशा। बेटा आप भी जय हिंद कहोगी ना? पक्की? हाँ, देखा सबसे छोटी भी कह रही है मैं भी जय हिंद ही कहूंगी। और ये देखो ये तो कह रहा है मुझे तो आप कहने के लिए से पूछ ही नहीं रहे, मैं तो कहूंगा ही कहूंगा। तो सब लोग जय हिंद करेंगे। आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं एक बार। और आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अवसर दिया यहाँ आके बच्चों के साथ बातचीत करने का। और मैं घर का पता छोड़ जाऊँगा बच्चों। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब छोटे बच्चे आते हैं घर पे, बहुत मस्ती करते हैं हम लोग। ओके, तो सबको मेरा इनविटेशन है, जब मन करे आ जाना। अब बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगे, बहुत कहानियाँ मेरे पास। ओके, जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your motivating and inspiring words. आपके सभी शब्दों ने हम पर बहुत गहरा असर छोड़ा है और मुझे लगता है कि हमारे सारे ही छात्र और छात्राओं को अपने जीवन में भविष्य की उड़ान भरने के लिए जो भी सपने देखने हैं वो सब ज़रूर देखेंगे और ज़रूर पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। Thank you once again, sir. Now we present a heartfelt musical tribute by the students through their melodious voices. They honor the brave martyrs. Let us immerse ourselves in this soulful performance and remember the heroes who made our freedom possible. मेरे वतन
तलवारों पे सवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी जमीन अफसोस नहीं जो मेरे लिए सो दर्द से महफूज रहे मेरी याद सदा, चाहे जान मेरी ना रहे ना रहे। मेरी जमीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क भर, पीना ना पड़े कभी रंग तेरा, इस मुंह से निकल के खून न बहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा बन के, मिल जावा ये दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में मिल जावा तेरे खेतों में लहरावा सी ये दिल की आरज़ू। मेरी जादू मके बगड़ा सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, लौट के वापस जा न सका। मेरे वतना में मेरा तेरा प्यार निराला था, आबाद रहे तेरी आपस में मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा बन के, मिल जावा इतनी सी ये दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी ये दिल की आरज़ू। हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आँख घड़ी भर न बनाओ, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कब ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बेतार, तू कहती थी तेरा चाँद हूँ मैं और चाँदों में सा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मिल जावा इतनी सी ये दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी ये दिल की Was melodious and heart-touching. Thank you. I would like to acknowledge the presence of ex-naval officer Mr. Y.K. Sharma, naval officer from India. We extend our heartfelt gratitude and respect to Sir for his service to the nation. A big round of applause. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद students and the staff of this Modi school, and I am very much happy that the present government is very much looking after the welfare
और पूर्व जवानों के भलाई के लिए और उनके वेल बीइंग के लिए बहुत ध्यान दे रही है और राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र के सिक्योरिटी के लिए बहुत ध्यान दे रही है. इसलिए वेरी मेनी थैंक्स टू यू ऑल एंड स्पेशली टू द स्टाफ and the principal and authorities of this Modi school and the children of this school. And I believe you will do all the best, and you are all educated and highly qualified staff of this Modi school, and the students are doing well. Please do the same, the best. And thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. भारत की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि जवानों और एक्स सर्विसमैन जो हैं, पूर्व जो सैनिक जवान जिसको बोलते हैं, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं. वेरी मच ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your motivating and inspiring words with all of us. Thank you, sir. Now, as we move forward to the next segment of the evening, it is my privilege to invite our coordinator of prep section, gathered with heart full of pride to remember the brave heroes who fought for our freedom. As we look at our tiny tots from prep section, we are reminded that Desh Bhakti has no age. Their steps may be small, but their spirit are mighty. Nanhe veer, chote kadam, badi soch. With this, our first performance, he was a man of steel and heart of fire. At a very young age, he showed us that Inqilab Jindabad is not just a slogan, but a heartbeat. Please welcome Master Karmraj Singh Jadeja performing as legendary Bhagat Singh. मेरा दिल सिर्फ भारत के लिए धड़कता है. तुम मुझे मार सकते हो, मेरे विचारों को नहीं. कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी. मुझे मेरी मातृभूमि पर गर्व है. इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद. Wow, what a powerful performance. Let's give a big round of applause for our little Bhagat Singh. Next, we have a brave soldier who stood shoulder to shoulder with his friend for our motherland. Put your hands together for Master Arav, appearing as fearless Rajguru. मैं इस मिट्टी का सच्चा सिपाही हूँ. मेरा निशाना पक्का है. मेरा इरादा नेक है. मैं अपनी आखिरी सांसों तक लड़ूंगा. देश के लिए मरना मेरे लिए सम्मान है. भारत माता की जय. भारत माता की जय. Amazing energy, Arav. You truly brought the spirit of Rajguru to the stage. The trio of our martyrs is incomplete without the brilliant mind and courageous heart of Sukhdev. Please welcome Master Kahan as the great Sukhdev. हम 3 शरीर हैं पर एक जान है. देश की सेवा करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है. हम हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे. हमारा बलिदान देश को आजाद कराएगा. वंदे मातरम. Simply wonderful. It was so inspiring to see these little ones honor such great legends. लेकिन उन वीरों का मेंटर कौन था? उन्हें वो हिम्मत, वो जज्बा और वो संस्कार कहाँ से मिले? हर महान इंसान के पीछे एक ऐसी शक्ति होती है जो दुनिया को दिखाई नहीं देती, पर वही उनकी असली बुनियाद, उनका फाउंडेशन होती है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन माँओं की जिन्होंने अपने बेटों को भारत की माँ की गोद में सौंप दिया. उन ममता और उनका त्याग ही वो था जिसे हमारे देश की आज़ादी की नींव रखी. तो आइए इस एहसास को और गहराई से समझने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी मिस ईवा को. प्लीज़ ईवा ऑन द स्टेज. माता विद्यावती, पार्वतीबाई અને રલી દેવીએ પોતાના પુત્રો ભગતસિંહ, રાજગુરુ અને સુખદેવને દેશ માટે અર્પણ કર્યા. આ વીર માતાઓને ગર્વ હતો કે તેમના પુત્રો આ માતૃભૂમિની આઝાદી માટે હસતા મુખે લડ્યા. તેમણે જ આ ત્રણેય ક્રાંતિકારીઓના હૃદયમાં સાચી હિંમત અને દેશ પ્રેમના સંસ્કાર રેડ્યા હતા. ભારતની આ ગર્વિત માતાઓ અને તેમના પુત્રોના બલિદાનને આપણે સત વંદન કરીએ છીએ. Excellent. It was really inspiring.
Our final performance for this segment is by Miss Dviti as she presents a special tribute to our national heroes. Our freedom is a gift from this brave hero. Now it is our duty to love and serve our India. We promise to be kind, honest and good citizens. Together we'll make our national proud. Jai Hind! Let us remember that this great man, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev, were once children with big dreams just like them. They taught us that you are never too small to love your country. Today, let's promise to be good citizens and keep our buddy soch alive. Thank you to all the prep section students for this beautiful journey through their history. जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज हम यहाँ उन महान वीरों को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी का अनमोल उपहार दिया। जब हम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं तो सबसे पहले याद आते हैं भगत सिंह, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया। चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अंतिम सांस तक अंग्रेजों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। हमें याद आते हैं सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का आह्वान किया। आइए हम आपको आज़ादी के उस दौर में ले चले जब देशवासियों ने मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारियों की ललकार सुनी, झांसी की रानी की पुकार सुनी और इनकलाब जिंदाबाद के नारों से फिरंगी सरकार की नींव हिला दिया। कुछ ऐसे ही पलों को जीवंत बनाने आ रहे हैं हमारे छात्र और छात्राएं, जिनमें आपको हर क्रांतिकारी की झलक मिलेगी, जिनके फौलादी इरादे भारत को एक स्वतंत्र देश बनाते हैं। पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक अविरत साधना, निश दिन प्रतिपल चलती आई, राष्ट्र धर्म आराधना। पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक अविरत साधना, निश दिन प्रतिपल चलती आई, राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे, जग जननी वंदे, वंदे मातृभूमि वंदे, जग जननी वंदे। पुण्य पुरातन देश हमारा, मानव का आदर्श रहा, संस्कृति का पावन मंगल स्वर, कोटि कंठ से नित्य बहा। सकल विश्व का मंगल करने, सकल विश्व का मंगल करने, सर्वस्व अर्पण प्रेरणा, निश दिन प्रतिपल चलती आई, राष्ट्र धर्म आराधना। पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक अविरत साधना, निश दिन प्रतिपल चलती आई, राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे, जग जननी वंदे, वंदे मातृभूमि वंदे, जग जननी वंदे।
गीत की गौरव गाथा का पथदर्शक प्रेरक आह्वान, भविष्य का पथ उज्जवल करने, भविष्य का पथ उज्जवल करने, शक्ति संचय साधना, निशिदिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक अविरत साधना, निशिदिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे जग जननी वंदे, वंदे मातृभूमि वंदे जग जननी वंदे। मातृभूमि आराध्य हमारी, राष्ट्र भक्ति है प्रेरणा, ईश्वर का है कार्य हमारा, जीवन की संकल्पना। केशव प्रेरित संग मार्ग पर, केशव प्रेरित संग मार्ग पर चरे वेदी की कामना, निशिदिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक अविरत साधना, निशिदिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे जग जननी वंदे, वंदे मातृभूमि वंदे जग जननी वंदे। पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक अविरत साधना, निशिदिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक अविरत साधना, निशिदिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे जग जननी वंदे, वंदे मातृभूमि वंदे जग जननी वंदे। पुण्य पुरातन देश हमारा, मानव का आदर्श रहा, संस्कृति का पावन मंगल स्वर, कोटि कंठ से नित्य बहा, सकल विश्व का मंगल करने, सकल विश्व का
मंगल करने सर्वस्व अर्पण प्रेरणा, निश दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक अविरत साधना, निश दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे जग जननी वंदे, वंदे मातृभूमि वंदे जग जननी वंदे। संबल लेकर हिंदू चेतना, समरसता का मंत्र महान, अतीत की गौरव गाथा का पथदर्शक प्रेरक आह्वान। भविष्य का पथ उज्जवल करने, भविष्य का पथ उज्जवल करने, शक्ति संचय साधना, निश दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक अविरत साधना, निश दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे जग जननी वंदे, वंदे मातृभूमि वंदे जग जननी वंदे। मातृभूमि आराध्य हमारी, राष्ट्र भक्ति है प्रेरणा, ईश्वर का है कार्य हमारा, जीवन की संकल्पना। केशव प्रेरित संग मार्ग पर, केशव प्रेरित संग मार्ग पर, चरे वेदी की कामना, निश दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक अविरत साधना, निश दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे जग जननी वंदे, वंदे मातृभूमि वंदे जग जननी वंदे। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्यश्यामलां मातरम्, वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी,
मधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को छूमे तिरंगा। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को छूमे तिरंगा। ये आवाज है एक शहीद फौजी की। मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट पे, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी मां के निकट जाके पोंछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिलों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा मां, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया है। मां को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे। छीन लिया उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि मां को संभाल ले वो, पर ये बात भी जहन में डाल ले वो कि एक मां यहां आंसू बहा रही है तो दूसरी मां उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक मां के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे मां के लिए अपना फर्ज भी निभाना है। मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है। तो क्या हुआ उसका पति जिंदा नहीं, देश तो जिंदा है।
हो सके तो मेरे पड़ोसियों, मेरे मोहल्ले वालों को भी बुला लेना। वो देख ले मुझे, फिर मुझे जला देना। लेकिन मुझे जलता देख कोई आंसू मत बहाना, क्योंकि जलकर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा मैं। शहीद हूं, देश प्रेम का फूल बनकर दोबारा खिल जाऊंगा मैं। रास्ते पर थी नजर, दिल में थी बेचैनी, आंखों में थे आंसू और तभी हो गई अनहोनी। लिपटे तिरंगे में जब उनको देखा, बिखर मैं गई, जैसे मेरी दुनिया पूरी की पूरी हिल गई। मैंने अपना पति खोया और वतन ने अपना बेटा। तभी हाथ में उन्होंने लिखा हुआ खत मिला और मेरे आंसुओं ने एक नया मोड़ लिया। खत में लिखा था, अगर ये खत तुम पढ़ रही हो, इसका मतलब है मैं अब नहीं रहा। पर तुम ये मत समझना कि तुम अकेली हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देश की ढाल मैं बना और हमारे परिवार की तुम। मेरी मुश्किलें तुमने अपनी मानी और तुम्हारी खुशियां मुझे दे दी। खुशी हो या गम, हर वक्त तुमने मेरा साथ दिया। बस एक बार फिर मेरे सपने को हकीकत में बदल देना। हमारे बेटे को मेरा सपना पूरा करने के काबिल बनाना। वादा करना मुझसे, हमारे बेटे को तुम देश की ढाल बनाओगी, उसे मेरी तरह एक फौजी बनाओगी। जय हिंद। हाँ, करती हूँ मैं आपसे वादा। कितनी भी आए रुकावटें, कितनी भी आए मुश्किलें, मैं ये सपना पूरा करूँगी। मेरा बेटा फौजी है, ये बड़े फख्र से मैं कहूँगी। क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपनी हंसते थे। दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। हम जो तिरंगा लहराएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे। वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, वो माँ के अलबेले जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे, जिसके लिए सरदार हमारा झूल गया था फंदे पर। धूल नहीं लगने दी हमने उस बेदाग तिरंगे पर, उस बेदाग तिरंगे पर, उस बेदाग तिरंगे पर। तेरा दर्द तू जाने बाबा, तेरा दर्द तू जाने बाबा। मैं तो खुशी से पागल हूँ, जिसकी गोदी में खेला मैं चला उसी के कंधे पर। लाडले जब सरहद जाएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे। वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, वो माँ के
much, students, for your soulful, emotional, and impactful performance. अब मैं आदरणीय भार्गव पंड्या सर को आमंत्रित करती हूँ, जो अपने विचारों से एक शहीद वीर परिवार की भावनाओं को शब्दों के माध्यम से हमें समझाएंगे। उनका स्वागत है। सभी स्वागत करेंगे तालियों के साथ। धन्येदं भारतं राष्ट्रं धन्येव गुर्जरी धरा तत्रापि सैनिकाश्च तत्र पारिवाका दुर्लभा। आदरणीय मोदी शाळा परिवार द्वारा आयोजित अमरवीर गाथाना आ पावन प्रसंग कार्यक्रमनी अंदर નથી મને પરવા કબર કે કફનની, નથી મને પરવા બદનના જતનની, મને તો પરવા છે બસ મારા જ વતનની. આવા સૂત્રને જેને જીવનમાં સાર્થક કરેલું છે અને એના પરિવારોને કેવી શહાદતોને જ્યારે ટૂંકમાં અથવા સરળ શબ્દોમાં મારે કહેવાની હોય, એક નાનકડો પ્રસંગ કહી અને હું મારી વાતને વિરામ આપીશ. સંસ્કૃતમાં એક વાક્ય છે, ભોજન સમયે ભાષણમ ભક્ષણમ ભવતી. ભોજન સમયે ભાષણ કરવામાં આવે તો એ ભાષણનું જ ભક્ષણ થઈ જાય. આ વિવેક હું સારી રીતે જાણું છું અને એટલે ટૂંકમાં એક પ્રસંગ કહું છું. ગામડું ગામ, વિધવા માં, 3 દીકરા અને પતિ ગુજરી ગયેલો અને પેટે પાટા બાંધી કાળી મજૂરી કરી અને પોતાના 3 દીકરાઓને ભણાવે છે, ગણાવે છે, શિક્ષિત અને દીક્ષિત કરે છે. પ્રથમ દીકરો જ્યારે 20-22 વર્ષનો થયો ત્યારે પોતાની માતાને કહ્યું, માં, મારે દેશની સેવા માટે, રાષ્ટ્રની સુરક્ષા માટે આર્મીમાં જવું છે, મિલિટરીમાં જવું છે. અને એ વિધવા માતાએ પોતાના દીકરાને હસતા મોઢે વિદાય આપી કે કંઈ વાંધો નહીં બેટા, તું રાષ્ટ્ર સેવા માટે, દેશ સેવા માટે જઈ શકે છે. આંખમાં એક પણ નમી નહીં, પણ એની દીકરાની વાત એને ગમી. 22 વર્ષનો એ દીકરો દેશની સુરક્ષા માટે જાય છે અને 6 કે 12 મહિનાની અંદર જ પોતે શહાદતને વહોરે છે. શહીદ થઈ અને દીકરો વતનમાં પાછો આવે છે. આખું ગામ ગમગીન બને છે, રડે છે, બધા રડે છે, ભાઈઓ, કુટુંબ, પરિવાર. પણ એ વિધવા માની આંખમાં એક આંસુ નથી. પોતે પોતાના પુત્રના વિયોગનું એક પણ આંસુ સારતી નથી. બધા કહે છે, અરે રે, આ કેવી જનેતા છે, પોતાનો 22 વર્ષનો જુવાન જોધ દીકરો ગુમાવ્યો ને માં રડે નહીં. આ તો બહુ કહેવાય. બધી વિધિઓ પતી ગઈ, પૂર્ણ થઈ, સમય અને કાળ વીતતો ગયો અને બીજા 6-12 મહિના થયા. ત્યાં વચેટ દીકરો મધ્યમ પુત્રએ એ જ જીદ, એ જ વાત પોતાની માં સામે મૂકી, માં, હું પણ મોટા ભાઈની જેમ દેશની સેવા માટે આર્મી જોઈન કરું. અને વિધવા માએ ફરીથી એ જ હસતા મોઢે પાછી હા પાડી કે હા, વાંધો નહીં દીકરા, તું પણ જા. હસતા મોઢે બીજા દીકરાને પણ વિદાય આપી અને દીકરો આર્મીમાં જાય છે અને લગભગ 3 મહિનાના ગાળામાં પોતે શહીદ થઈને પાછો આવે છે. આ બનેલી ઘટના છે અને મારા ગામની જ છે. 3 મહિનામાં એ શહીદ થઈને પાછો આવે છે ને ત્યારે એ માં આંખમાં આંસુ નથી સારતી, રડતી નથી. ગામ આખું રડે, હિબકે ભરે, વિચારનારા વિચાર જાય, કઠણ કાળજા કહેવાય, એની આંખો પણ ભીની થઈ જાય, પણ એ રડતી નથી. આમ ને આમ 2 દીકરા ગુમાવ્યા બાદ ત્રીજા દીકરાએ પણ આ જ જીદ પકડી છે, મારે પણ જવું છે. અને 2.5 વર્ષના ગાળામાં એ ત્રીજો દીકરો પણ જ્યારે શહીદ થઈને વતનમાં પાછો આવે છે ત્યારે મારી ઉંમર કદાચ 14 વર્ષની હતી. શહીદ થઈને જ્યારે પાછો આવે છે ત્યારે આખું ગામ તો રડે છે કે અરે રે, પતિ ગુમાવ્યો, વિધવા થઈ, પેટે પાટા બાંધ્યા અને 3 દીકરા પોતાના દેશની સુરક્ષા માટે શહાદત વહોરી લીધા. અને જ્યારે ત્રીજા દીકરાની લાશ શહાદત આંગણામાં આવે છે ત્યારે માં ચોધાર આંસુએ રડે છે. એમ કહેવાય કે 3 દીકરાનું એક સામટું રડવા લાગી. એટલું બધું રડે છે, એટલું બધું રડે છે કે કોઈનાથી જાયલા જલાતા નથી. અને ત્યારે કેનારા વર્ગોએ એવું પણ કહ્યું કે એકને ખોડ એકને ગોળ, માના દિલમાં આવું કપટ, પેલા 2 દીકરા શું વધારાના હતા એના માટે એક આંસુ ન સાર્યું, ત્રીજો દીકરો વહાલો એના માટે આટલું રડી. પણ સમજુ વર્ગ, ડાયા વર્ગે 2-5 દિવસ પછી એ માને પૂછવા ગયા અને એને પૂછ્યું કે કેમ પેલા 2 દીકરામાં તમે એક આંસુ ન સાર્યું અને આ ત્રીજો દીકરો શહીદ થયો ત્યારે રડો છો? અને ત્યારે એ વિધવા માનો જે જવાબ હતો એ આપણા કાળજે ચોંટી જાય એવો હતો કે હું એટલા માટે નથી રડતી કે મારો ત્રીજો દીકરો પણ શહીદ થયો, હું એટલે નહોતી રડતી કે મારા 3 દીકરા શહીદ થયા, હું એટલે રડતી હતી કે જ્યારે જ્યારે માતૃભૂમિને જરૂર પડી ત્યારે ઈશ્વરે મને આપેલા, મેં મારા 3 સંતાન દેશની સેવા માટે આપી દીધા. હવે દેશને જ્યારે સીમાડાની સુરક્ષાની જરૂર પડશે તો હું મારું 4થું સંતાન ક્યાંથી લાવીશ? મારી પાસે તો 3 જ દીકરા હતા. આવી જ્યાં સુધી સંવેદના ભારતની નારીમાં છે, યાદ રાખજો આપણા સીમાડા સુરક્ષિત છે. જય હિન્દ. भार्गव सर का उनके प्रेरणादायक और हृदय स्पर्शी विचारों के लिए हार्दिक धन्यवाद.
Now we present Param Veero Ko Naman, a tribute to the brave soldiers honored with the Param Veer Chakra. Let us take a moment to understand the significance of Param Veer Chakra. And for this, I would like to invite our coordinator, Mrs. Amanpreet Kaur ma'am. Param Veer Chakra is India's highest military bravery award given for the greatest courage in the face of the enemy. Since independence, only 21 individuals have received it, and many were awarded and honored after laying down their lives for the nation. Major Somnath Sharma. He received the first Param Veer Chakra and bravely fought for the enemy in Kashmir in 1947, sacrificing his life to save many people. Nayak Judanath Singh. He defended his post in Kashmir with unmatched bravery, holding off the enemy until his last breath. Second Lieutenant Raghoba Rane. He cleared dangerous minefield during 1947 war, allowing Indian troops to advance safely. Company Havaldar Major Piru Singh. Piru Singh fought bravely even after being wounded in 1947 Kashmir War, defeating enemy forces before sacrificing his life. Lance Nayak Karam Singh. He showed immense bravery in battle, standing strong against the enemy and inspiring his comrades. Captain Gurbachan Singh Salaria. He was on a United Nations mission in Congo, fought for protect civilians and his men, sacrificing his life to save others. Major Dan Singh Thapa. He fought the Chinese army in Ladakh in 1962, leading his men bravely in difficult terrains. Subedar Joginder Singh. He defended his post during 1962 war against overwhelming odds, showing unshakable courage for the nation. Major Shaitan Singh. He led his soldiers bravely in Ladakh in 1962 and fought until his last breath, inspiring generations. Colonel Adesar Tarope. He led tanks in 1965 war with extraordinary skills and courage, defeating many enemy forces and showing leadership under the fire. Company Quartermaster Havaldar Abdul Hamid. He destroyed many enemy tanks in 1965 war despite having fire. Lance Nayak Albert Ikka. He displayed unmatched bravery in the 1971 war. He captured enemy positions despite heavy fire and made the supreme sacrifice. Flying Officer Nirmaljit Singh Shekhon. He defended Srinagar Air Base in 1971 against 6 enemy jets, fighting bravely until his last breath. He is the only IAS officer to win PVC. Major Hoshiar Singh Dahiya. He led his troops in 1971 war with courage, capturing enemy's position and inspiring his soldiers by his fearlessness. Second Lieutenant Arun Khetarpal. He fought tank battles in 1971 war despite injuries, destroying enemy tanks and sacrificing his life for victory. Naib Zubedar Bana Singh. He captured a critical enemy post in 1987 at high altitude under enemy fire, showing remarkable bravery for the nation. Major Ramaswamy Parameswaram. He fought fearlessly on a United Nations mission,
saving lives and showing extraordinary courage under fire. Manoj Kumar Pandey, he led his Kargil in 1999 with immense bravery, motivating his men even while severely wounded. Grenadier Yogendra Singh Yadav, he scaled Tiger Hill in 1999 Kargil war under heavy fire, helping India win a crucial battle. Rifleman Sanjay Kumar, he fought in Kargil 1999 with an unmatched courage under heavy fire and saving lives. Captain Vikram Batra. Captain Vikram Batra, Sher Shah, captured key enemy positions in Kargil 1999. His bravery and leadership inspired the nation. ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। A heartfelt applause for this inspiring and knowledgeable speech, ma'am. Thank you so much. I request all of you to take the position for oath. आदरणीय भारत माँ, सादर नमन। हम एक जागरूक और जिम्मेदार भारतीय नागरिक आज आपको यह पत्र अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिख रहे हैं। आप केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि हम करोड़ों भारतीयों के हृदय के लिए एक चेतना की पूंज है। आपके आंचल में हिमालय का मुकुट और चरणों में सागर की लहरें आपकी भव्यता का प्रमाण है। माँ, हम अपने देश की महान संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की भावना और विविधता में एकता के आदर्शों का पालन करेंगे। अपने वीर सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग को स्मरण रखते हुए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करेंगे। प्रार्थना है कि आप हमेशा इसी तरह समृद्ध और यशस्वी बनी रहे। आपके स्नेहपात्र भारतीय गण, जय हिंद, जय भारत। जो शहीद